Hello everyone. So in this lecture we are trying to see deeply what is basically work energy theorem and how we are going to apply this in our questions which may be asked. So we already saw work done by all the forces equal to change in kinetic energy. This is known as work energy theorem. But the question is, which forces are involved in this left hand side? When I say work done by all the forces, then which forces are involved? So the answer is work done by external forces, work done by internal forces, even work done by pseudo forces if observer is in non-inertial frame. Now students, I hope you know the difference between work done by external, what are external forces and what are internal forces. Basically, external forces and internal forces, they are nothing but they depend upon the choice of our system. For example, if this is block A, this is block B, and this is connected by a string, and someone is pulling this block B at F. So A is connected by B, B is also connected by A, so there is a tension in the string. Now if I consider A as a system, then this tension will be considered as external force for A. If I consider B as a system, then also I will draw the FBT of B. So this F and tension will act as external force. But as we saw in our Newton's law discussion, if I consider A plus B as a system, then this tension will be internal force and this F will be external force. So same tension was external force if we were considering A and B as two different systems, and the same tension T became internal force if we considered A and B as a whole as a system. So we can say external or internal forces can be any of these forces, like work done by gravitational force plus work done by normal force plus work done by tension force plus work done by frictional force plus work done by spring force plus work done by electrostatic force, okay, plus work done by pseudo force is equal to change in kinetic energy. So we can see all the forces which we have studied or which we know in class 11th or 12th, they all can be used to calculate the work done, and depending upon these forces, examiner can make any type of question. Examiner, he can make a question in which only tension is doing work or normal is doing work. Yeah, he can make a question in which tension, normal and gravity are doing work done. So it depends on the mood and thought of examiner, what he is thinking. So I can make any type of question. It's no doubt, it's clear. More is the number of forces are going to be involved, more lengthier will be our solution. So, but the theme will remain same. So again, as I keep repeatedly saying, we don't have to give a much time to problems. We have to see the concept behind the problem. Okay, what is the concept? So if I am strong in concept, I can solve any type of problem. So now we will look out one by one different work done by different forces in different cases. Like we will see work done by tension force, then how to deal the problems with normal force, how to deal the problem with work done by friction, how to deal the problem with work done by spring, and at last when I know separately how to calculate the work done by friction, spring and so on. So if examiner formulates a problem which is containing two or more than two forces, I can easily do the problem. Now here this is a very simple problem. A block is placed on the ground. Suppose its mass is m.
and a force F is applied, and we have been asked the work done by different forces on this block. So what we will do, we will draw FDT, gravitational force, normal reaction F, and suppose it moved by a distance of delta S. Now work done by normal force, since normal and ds are perpendicular to each other, work done by normal is 0, work done by gravity is 0. Only work will be done by this external or the applied force, which is equal to F dot ds. Since F and ds are parallel, so this will come out to be F delta S. This is very simple. So here what we saw, work done by normal force came out to be 0. But it's not necessary that work done by normal is always 0. This is not true. In many cases work done by normal force will come out to be 0. ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई केसेस में नॉर्मल का वर्क डन 0 आएगा, बट ऐसा नहीं है कि वर्क डन नॉर्मल का जो वर्क डन है नॉर्मल फोर्स का वो हमेशा 0 नहीं होगा. जैसे इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं. Now there are two blocks in contact with each other, and again under this force the system moves by a distance of delta S. Okay. Now we have to clear one thing. There are normal force, but there are many type of normal force. Like N1 is between A and ground, N2 is between B and ground. Like if I draw the FBT of A, it will be something like this: MAG N1 F, and from B block the NAB. And if I draw the FBT of B, then this will be MBG, then N2, and from here NAB. So this will be the FBT. So here what we will see, work done by N1 on block A will be 0, because again theta is 90 degree. Work done by N2 on B again will be 0, as theta is 90 degree. But work done by NAB on A, if you will calculate this, so what will happen on A, NAB is acting, suppose its magnitude I am taking as N. So here the displacement is delta S, and the angle between N and ds is 180 degree. So the answer will be work done by normal reaction between A and B on A will be equal to minus N delta S. Similarly, if we calculate this work done on B, then what we will find, on B the N and ds are in same direction. You can see here. So for B block, this N and ds are parallel. So work done by the same force NAB on B will be equal to plus N delta S. So net work done by normal reaction between A and B on both A and B will be equal to 0. So we have to look very carefully on the question what examiner has asked, whether he has asked work done by normal force on A or work done by normal force on B, or he has asked work done by normal force on the system A plus B. Accordingly, my answer will be different. So please have a look at this, and this is very simple concept, but still try to डिपोजिट इट योर माइंड. एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कोई चीज को रट के जाने की जरूरत नहीं है. बस एक ही लाइन याद रखनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी. व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन, ऑलवेज 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 स्पेसिफाई फॉर विच फोर्स यू आर कैलकुलेटिंग दिस वर्क डन, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप हवा में खाली वर्क डन निकालेंगे तो आप कभी ना कभी जरूर फंसेंगे. ठीक है. Again, we can see a new problem. This time there is a wedge which is placed in a lift, and a block is placed on this wedge. The conditions are the block is at rest. That means some kind of frictional force is there. So we can draw a friction force also, and this will be
static friction in nature. So there are three forces involved in the process. Now lift starts from rest with a speed v, that is constant. Block is at rest. Work done by the normal force between block and wedge during time t. So what we have to say, since block is at rest, so in the time t, the displacement of lift will be Vt, and since block is at rest, the displacement of lift will be the displacement of wedge, that will be the displacement of block. So we can write the displacement of lift equals to Vt. Now a little bit of geometry. This angle is theta, so this will be theta. Since normal is perpendicular, so this will be 90 minus theta, and the angle between n and delta s will be theta. So work done by normal force will be n dot ds, that will be n delta s cos theta. Now the question arises, what will be the value of n? So n can be easily calculated if we resolve this mg into two components, one along the plane and another perpendicular to this plane. So this will be mg sin theta, and this will be mg cos theta. So simply the work done will be mg delta s is Vt, cos square theta will be the answer. Here we can have more questions like what is the work done by gravity, what is the work done by friction. So same problem we will see, but since we are dealing this time all the normal force, so we are limited only up to normal force. Same problem, we can find the work done by friction, work done by gravity also. We will see soon same problem. Now नेक्स्ट हमारा है वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब यहाँ पे दो तीन चीजें आप समझ लीजिए बेटा. पहले ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कभी बाद में. ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ और किसी बॉडी के बीच में लग रहा है. यहाँ पर ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ की सरफेस से हाइट है h. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय re प्लस h होल स्क्वायर. इसको आप चाहें तो g m अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये जो पार्ट है जी एम ई अपॉन आर एच का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है. अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर अर्थ का रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर. अगर हम लोग छोटी मोटी हाइट ले रहे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो 6400 किलोमीटर के सामने ये क्वांटिटी होगी बड़ी छोटी. तो हम आर ई प्लस एच को ऑलमोस्ट आर ई लिख लेंगे और हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये रह जाएगा कितना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जिसको हम लोग जानते हैं छोटा जी ना. दिस इज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 के आसपास हम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. और इस तरह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है वो रह जाता है mg. तो इस चैप्टर में और न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में जब तक रहता है, जब तक हम एज सच ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे आते नहीं हैं और इफेक्ट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड ऑन स्मॉल जी जब तक हम स्टडी नहीं करते हैं, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mg. तो अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स में हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके. नाउ यहां पर हम देखते हैं हमारे पास तीन केसेस हैं. एक ब्लॉक सीधा गिरता है हाइट से, एक ब्लॉक इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन पे गिरता है और एक ब्लॉक कर्व प्लेन पे गिरता है. तीनों केस में वर्टिकल हाइट इज h h एंड h. ये बहुत इजी प्रॉब्लम है. mg फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है. यहाँ पर थीटा आपका हो जा रहा है कितना, 0. वर्क डन इज प्लस mgh. यहाँ पर mg और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पर क्योंकि एंगल हमेशा कांस्टेंट है तो ध्यान रखना बेटा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर रखा है. एक्चुअली आपने शुरुआत कहाँ से करी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इंटीग्रेशन ऑफ mg डॉट dl से ही करी. ये आपका बन गया mg
dl sin थीटा, क्योंकि sin थीटा कांस्टेंट था, एक्चुअली cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin थीटा कांस्टेंट था, तो dl का इंटीग्रेशन l हो गया और l sin थीटा इज h। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल h l थीटा, सो h विल बी l sin थीटा। तो अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी कम्स आउट टू बी mgh। और इवन अगर ये कर्व्ड होता तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे आपका इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे ठीक है, हर जगह पे थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ का थीटा कुछ है, यहाँ का थीटा कुछ है, बट हर जगह पे आपको डीएल साइन थीटा मिलता। डीएल साइन थीटा आपका कर्व ऐसे आता, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो बेटा, जैसे ये है, ये आप आ रहे हो, यहाँ से आते डीएल साइन थीटा, ये डी वाई हो जाता, यहाँ से डीएल साइन थीटा आते डी वाई हो जाता, यहाँ से डीएल साइन थीटा होते ये डी वाई हो जाता, यहाँ से आगे बढ़ते ये डी वाई हो जाता। तो एक्चुअली हम जोड़ते क्या, नीचे की डिस्टेंस जो कि फिर से कितनी है h। तो हमारा रूल क्या बन गया, वर्क डन ग्रेविटी निकालना बड़ा आसान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ वर्क डन बाय ग्रेविटी will always depend upon the initial position and final position. In fact, this is not the position, initial vertical level and the final vertical level. In all these cases, initial and final position is different. But in all the three cases, initial y coordinate and final y coordinate is same. Suppose this is 0, this is y, then here initial coordinate was y, final was 0. Initial was y, final was 0. Initial was y, final was 0. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ डिपेंड करता है किस पे बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आपके पास 100 से ज्यादा रास्ते हों लेकिन सारों रास्तों पे अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका h आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सारे केसेस में mg h आ जाएगा। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि g का किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। डेट मीन्स आपने जो हाइट ली है वो कम है, वो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में काफी कम है। लेकिन यही सवाल अगर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, जहां पे हमसे बोलेगा कि एक सैटेलाइट या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से आर रेडियस के बराबर ले गए, वहां पे हमारा आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा वर्क डन बाय टेंशन। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। एक हमारे पास पेंडुलम है, उसका बॉब हम रिलीज कर देते हैं पॉइंट ए से और ये थीटा एंगल कवर करता हुआ बी तक आता है। हमको पता लगाना है व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का तो ऑलरेडी हमने देखा था, वर्क डन सिर्फ वर्टिकल हाइट पे निकलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगी। ये एल है, यहाँ से एक ट्राइंगल बना देंगे, तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। टोटल लेंथ है एल, तो आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ वो ये वाला कवर हुआ, यानी टोटल एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज इतना। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg h, सो mg l 1 माइनस कॉस थीटा। रिगार्डिंग टेंशन, बस आप ये चीज समझने की कोशिश करो, ये एक सर्कुलर आर्क पे आ रहा है आपका बॉब, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में थी और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस डायरेक्शन में था। आपका ये एंगल कितना हो गया 90। थोड़ी देर में बॉब यहाँ पहुंच गया, अगेन टेंशन यहाँ हो गई, फिर से एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर। तो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज। देयरफॉर आपका जो t डॉट ds है वो हर पॉइंट पर 0 हो गया, तो आपका इंटीग्रल ऑफ t डॉट ds भी 0 हो गया। सो इस केस में वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0 एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgl 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, आप देखिए यही सब जब छोटे छोटे सिंपल पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे तो जो बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी उसमें भी अब इन्हीं चीज का यूज हमको करना होता है। तो एक एक करके आप सारे फोर्सेस को हम देखते चलेंगे, कैसे भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट में भी आ सकती है, मैग्नेटिज्म में भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो ये वाला पोर्शन अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम देखेंगे काफी सारे चैप्टर्स में SHM वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाला अगला चैप्टर हमारा है, तो बहुत जगह पे चीज हमको काम में आएगी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली सारे केसेस न्यूटन्स लॉ के हैं। एक लिफ्ट है, रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका एफपीटी बनाया t बराबर mg, तो वर्क डन बाय टेंशन, ऊपर को h डिस्टेंस चलेगा तो टेंशन भी ऊपर होगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, th, t की वैल्यू mg आ रही है तो दैट विल बी mgh। यही लिफ्ट ऊपर को जा रही होती a0 एक्सेलरेशन से, फिर एफपीटी बनाते, ऊपर t नीचे mg, ऊपर को a0, इस बार t माइनस mg का रिजल्टेंट हो जाता है ma0, t बराबर mg प्लस a0, वर्क डन हो जाता है mg प्लस a0 इंटू h। और यही लिफ्ट अगर नीचे को आ रही होती तो उस केस में t mg माइनस t बराबर ma0 लिखते और अकॉर्डिंगली आपका वर्क डन बाय टेंशन आ जाता है mg माइनस a0 इंटू h। यानी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी रहेंगी जो बहुत ही सिंपल होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम
एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप फोर्स अप्रोच से जाइए या दूसरा आप वर्क एनर्जी वाले अप्रोच से जाइए। बस आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे फोर्स वाली अप्रोच काम आएगी और कहाँ पे वर्क एनर्जी वाली अप्रोच काम आएगी, क्योंकि दो रास्ते हैं तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता कब यूज करना है। अक्सर हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, हम लोग इनकी खिचड़ी बना देते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम क्लियरली ये समझते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं और हम देखेंगे कि किस सिनेरियो में कौन सा तरीका हमको काम आने वाला है। नाउ एक हम लोग टिपिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ की है, इसमें कुछ वर्क एनर्जी का रोल भी नहीं है फिलहाल। दो ब्लॉक्स होते थे, पुली के थ्रू बंधे रहते थे और पुली फ्रिक्शनलेस होती थी। तो यहाँ से हम एफपीटी बनाया करते थे, कुछ कंस्टेंट यूज करते थे। कनेक्टेड स्ट्रिंग है तो दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम अपने इक्वेशंस बनाते थे। ये ऊपर को जा रहा था तो t माइनस m2g बराबर m2 है, ये नीचे को आ रहा था तो m1g माइनस t बराबर m1 है। दोनों को सॉल्व करके a और t की वैल्यू निकाल लेते थे, या फिर हमारा एक शॉर्टकट तरीका काम करता था जिसमें हम नेट पुलिंग फोर्स निकाल लेते थे, जिसमें हम कहते थे एक्सेलेरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब m1 वाला ब्लॉक नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, m2 वाला ब्लॉक अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया m1g माइनस m2g और पूरे सिस्टम का मास हो गया m1 प्लस m2। तो आपका सेम आंसर आ जाता था, चाहे आप यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखिए। इसके बाद हमसे पूछ सकता था स्पीड दोनों की सेम है तो किसी की भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू है नहीं क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, 80 कर देंगे। a की वैल्यू पुट करनी है या आप रख दीजिए बस, ठीक है ना। तो v बराबर 80 हो जाएगा। या आपसे पूछ लेगा स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ h इज द वर्टिकल हाइट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो नीचे को आने में आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी, वेलोसिटी इज √2gh, सो v बराबर g की जगह a लगा दिया। तो स्पीड आपकी हो गई 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू gh। किसी भी टाइम पे दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम होनी है, बस एक की नीचे होगी और दूसरे की ऊपर होगी। तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन या वी हैव जस्ट सीन इन शॉर्ट किस तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ से काम करते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेम प्रॉब्लम वी कैन डील विथ वर्क एनर्जी मेथड ऑल्सो। बस हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर फोर्स वाला मेथड काम कर जाएगा, कहाँ पर शॉर्ट टाइम में फोर्स वाला मेथड काम कर जाएगा और कहाँ पर एनर्जी वाले मेथड से हमारे पास इजिली काम आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सारा काम ये वाला आसान क्यों हो गया, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आया। तो सीधा सा रूल ये है, अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो हम सीधे डायरेक्ट मेथड से चलेंगे, लेकिन इनकेस अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा होता तो उस केस में वेलोसिटी या स्पीड निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको वहां पर भी काम करेगा। सो सेम प्रॉब्लम को अब हम थोड़ा सा एनर्जी मेथड से देखेंगे। सो सेम प्रॉब्लम को हम एक दूसरे व्यू से देखते हैं। अब आप देखिए, पहले हम देख चुके हैं अगर ब्लॉक m1 h हाइट नीचे जाता है तो ब्लॉक m2 h हाइट ऊपर आएगा। अब इस केस में m2 टेंशन ऊपर को है, h ऊपर को है, m2g नीचे को है, यानी टेंशन और h एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं लेकिन m2g और h अपोजिट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप m1 के लिए देखोगे तो m1g और h नीचे जा रहे हैं लेकिन t ऊपर को है और h नीचे को आ रहा है। तो आप देखिए वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2 t और h ऊपर को प्लस th, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 t ऊपर को h नीचे माइनस th, बट नेट वर्क डन 0। ठीक है, वैसे भी आप सोचें अगर आप 1 + 2 को देखें तो टेंशन और टेंशन क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स। इसलिए क्या हम ये बोल दें क्योंकि टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन m1 + m2 को हम 0 बोल दें बेटा। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा पढ़ा है आपने, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम वैसे दोबारा भी आएंगे लेकिन मैं यहीं पर इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर दूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज 0, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गए वो अलग बात है, बट ये कोई लॉजिक नहीं बना कि टेंशन इंटरनल फोर्स थी इसलिए 0 हो गया। ठीक है, सही रीजन क्या है, m1 पे टेंशन ने नेगेटिव काम किया, m2 पे पॉजिटिव काम किया, इसलिए टोटल मिलकर कितना हो गया 0। नाउ m1 ब्लॉक कहाँ रहा है, नीचे को, ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे को, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 हो जाएगा प्लस m1gh। m2 ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है नीचे और m2 ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस m2gh।
आप कहोगे सर मुझे आपको कैसे पता चल रहा है कि ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो मुझे इसलिए पता चल रहा है कि एग्जामिनर ने बोल रखा है, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि m1 का जो मास है वो m2 से बड़ा है, इसलिए आपका ये वाला सिस्टम नीचे को और ये वाला सिस्टम ऊपर को जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास टेंशन का वर्क डन 1 पर कुछ है, 2 पर कुछ है, ग्रेविटी का वर्क डन 1 पे कुछ है, 2 पे कुछ है, बट टेंशन का वर्क डन 1 + 2 एज अ सिस्टम 0 हो जा रहा है। वर्क डन बाई ग्रेविटी 1 पर भी कुछ है, 2 पर भी कुछ है, और दोनों यानी कि पूरे सिस्टम पर भी कुछ ना कुछ बचकर आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसी प्रॉब्लम को हम स्पीड निकालने में देखिए कैसे यूज कर लेते हैं। m1 m2 हमने देखा था वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अभी रिजल्ट क्या निकला, जब ये नीचे को आया और ये ऊपर को आया तो इसकी कुछ स्पीड हो गई, इसकी कुछ स्पीड हो गई, लेकिन कंस्ट्रेंट क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधी है और स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल बाय डेफिनेशन, सो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो अब आप देखो बेटा कितने फोर्स काम किए, m1 पे टेंशन, m2 पे टेंशन, m1 पे ग्रेविटी, m2 पे ग्रेविटी, तो कुल मिला के वर्क डन बाई टेंशन ऑन m1 प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन m2, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 2 शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन 1 + 2। ये ऑलरेडी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कितना आ गया था 0, और वर्क डन ग्रेविटी इतना, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v², सारा काट पीट कर आपके पास आ गया इतना। आपने देखा ये वही वैल्यू है जो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फोर्स वाले मेथड से निकाली थी। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करें। देखिए वहां पर क्या हो गया था, क्योंकि हम लोग को 11th में भी जब हम लोग होते हैं, फिर हम लोग टारगेट भी कर रहे होते हैं, तो न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर इतना कॉमन होता है और वो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, तो हम लोग इतनी बार पढ़े रहते हैं, वो हमको फॉर्मूला याद हो जाता है एक अक्सर, तो हमको लगता है कि सर वहां से भी निकालना हमारे लिए आसान पड़ा। बट इन जनरल अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास जहां पे भी फोर्स कांस्टेंट नहीं आए, जहां पे आपको फोर्स में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन लगे, यू कैन गो विथ डायरेक्ट एनर्जी मेथड, क्योंकि एनर्जी मेथड रिजल्ट पे बेस है कि आपकी स्पीड कितनी थी, कितनी हो गई, वो प्रोसेस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है ना। अब हम चाहें तो यहां से उल्टा करके हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। इसको अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे निकाला जा सकता है। अब देखो बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि इससे डायरेक्ट आपके नीट पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, ये मान लीजिए थोड़ा सा चला नीचे, पहले हम h ले रहे थे, थोड़ा सा चला dy, ये थोड़ा सा dy ऊपर को चला, तो जो हम h ले रहे थे, h की जगह हम क्या कर लेंगे, h लिख रहे थे m1g माइनस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह छोटा सा चेंज लिख लिया डी। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टी पे, तो यहाँ dy बाई dt आ गया, यहाँ dk बाई dt आ गया। ये क्या था, हाफ m1 प्लस m2v², dk बाई dt करेंगे हाफ m1 प्लस m2, चेन रूल लगा, v² का 2v और dv बाई dt। मेरे ख्याल से चेन रूल सबको मालूम है। हमने यहाँ पर क्या किया, dv से मल्टीप्लाई कर लिया और dv से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब आप ये देखो dv बाई dt आगे चल के हमारा ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, और ये क्या है v। तो यहाँ से m1g माइनस m2g dy बाई dt, चाहे नीचे जाने का चाहे ऊपर, दिस इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v से v कैंसिल हो गया, और a बराबर कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। यानी कि बेटा टोटली डिफरेंट अप्रोच। देखो न्यूटन्स लॉ पे हमने क्या किया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी। यहाँ हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यानी बिल्कुल उल्टी अप्रोच चल रही है। अब इसमें होता क्या बेटा, यहाँ पे मजा नहीं आया, मजा आता है जब आप छोटी क्लास में 11th में होते हैं, या फिर आपके पास एक पूरे 1 साल का टाइम होता है। इससे क्या होता है, एक फील आता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको तो हम ऐसे चुटकी बजाते कर देंगे, ऐसे नहीं कर देंगे तो वैसे कर देंगे। और मैंने हमेशा बोला, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप सवाल को लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लगता है यार मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो सफिशिएंट है, ऐसे नहीं तो वैसे मैं प्रॉब्लम को कर ही लूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझे तो होते नहीं है, तो उनको लगता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर चीज फोकस करके, देखिए बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी क्या है, वहां पे फिक्स है भैया। आपको बोल दिया कि भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है आर्टरीज में, तो वहां पे कोई दिमाग नहीं है, लेट अस सपोज नहीं हो सकता, लेट अस सपोज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है, नहीं, वो फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास सिचुएशंस है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, आप क्योंकि फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक दिमाग की उपज है, कुछ आपके सामने नहीं दिख रहा था, सिर्फ थॉट प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए बड़ा मजा आता है। हालांकि आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप लोग का 1 या 1.5 महीने बाद हो सकता है सीधे आपको एग्जाम देने जाना है। लेकिन अगर यही चीज आप सोचें कि अरे वाह सर, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम उल्टा करके भी ए निकाल सकते हैं, तो ये आपको एक फील देगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी लगेगा फोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है,
जब भी हमको लगेगा वर्क डन निकालने में फोर्स इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, हम चुपचाप वर्क एनर्जी थ्योरम पर आ जाते हैं। एक्चुअली जब हम टुकड़े में पढ़ते हैं बेटा, तो हमको कोई ये नहीं समझाता है कोचिंग्स में, अब सारी कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का जगह पे कोई टीचर बताते हैं, एक्चुअली कोई टीचर हमको नहीं बताता। न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स लॉ पढ़ा जाता है और वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी पढ़ा देता है, ठीक है ना। तो कोई हमको ये नहीं बताता है कि इस क्वेश्चन को आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, ये भी कभी कभी लोग बता देते हैं, बट जरूरी ये जानना है कि उन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका कब कहाँ कैसे यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि आप प्रॉब्लम्स में मत जाइए, देखिए प्रॉब्लम्स तो अपने आप लगेंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने कम प्रॉब्लम्स लगाई। आप ग्रेविटी जो आपका काइनेमेटिक्स वाली जो सीरीज है उसमें आपने देखा होगा, हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें लगा के आपको दे रखी हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक बार मेरे पास कॉन्सेप्ट की समझ होगी तो आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा। और नीट में तो वैसे ही जो सबसे, मैं कहता हूँ ना, जो सबसे सड़ा गला एकदम रद्दी प्रॉब्लम होती है वो बचती हैं। आपके लिए अच्छी बात है, रद्दी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट को क्यों समझना जरूरी होता है, जैसे कई लोग मुझसे पूछ सकते हो सर इसको जानने की क्या जरूरत है। इसको बस इसलिए जानना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आपको मन में विश्वास आता है कि अरे हम एच सी वर्मा भी लगा सकते हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, हम अलानी किताब भी लगा सकते हैं, हम फलानी किताब भी लगा सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में आप सबको मालूम है बेटा, अगर कोई चीज सबसे काम की होती है तो सिर्फ आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होती है। एक बच्चा होता है, उसको लगता है कि मैंने तो साल भर मेहनत करी है, मैंने इतने टेस्ट दिए हैं, मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, मैं कहीं पे उलझूंगा नहीं, उसका टेम्परामेंट अलग होगा एग्जाम को देने का। दूसरा बच्चा, उसके मन में कहीं घबराहट हो रही है, यार मैं तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, टेस्ट पूरे अच्छे से नहीं दिए, मेरे को तो इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जैसे ही पेपर देखेगा वो घबरा जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस वाली यूनिट को आप अच्छे से देखेंगे। अभी हमारे 2-3 इसमें पार्ट और बचे हैं। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना है हमको, और वर्क डन बाय सूडो फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन बाय सूडो फोर्स देखना, क्योंकि वहां पे कई सारे सवाल ऐसे हमारे बन जाएंगे जो कि 2 मिनट में होने थे, लेकिन अगर हमको वर्क डन बाय सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वही सवाल हम आपको 20 से 30 सेकंड में करके भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। सो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन 2 तरह का है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो विल सी वन बाय वन what is the work done by static friction and then what is the work done by kinetic friction। इसमें कई सारे केसेस हम देख सकते हैं। केस 1, सिंगल ब्लॉक केस, is placed on ground, आपने फोर्स लगाया, force is less than limiting friction, in this case limiting friction will be mu times mg। static force, the static friction comes out to be applied force, but point of application of force move नहीं कर रहा है, ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0। नाउ दिस इज सेकंड केस, हम वी आर पुलिंग द लोअर ब्लॉक बाय फोर्स F एंड पुलिंग इज इन सच ए वे दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि आप इसको पुल करें और दोनों साथ साथ चलें, ये भी हो सकता है आप इसको पुल करें और A तेज मूव करें और B पीछे रह जाए। फिलहाल हमारा केस क्या है, both A and B are moving together. A and B are moving together, that means there is no relative motion between A and B. Therefore, between the two surfaces A and B, static friction will be acting. Now, when we draw the FBD of upper block, that is block B, since A block has acceleration in the forward direction, both the blocks are moving together, so this has also acceleration in the direction of A, same acceleration is A. So there must be some force which is providing the forward acceleration, or you can say if there would have been no friction, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो, और आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो B के रिस्पेक्ट में A कहाँ चला गया होता, आगे, और अगर आप A पे खड़े होते तो आप जाता तो A आगे, बट आपको क्या दिखता, आपको ऐसा लगता है जैसे कि B पीछे जा रहा हो, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो A के रिस्पेक्ट में B कहाँ जाता, पीछे, तो B पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगा, आगे, और B के रिस्पेक्ट में A आगे जाता तो फ्रिक्शन लगता पीछे। बट क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो सेम टाइम में हमेशा दोनों की डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। नीचे वाले ब्लॉक पे इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया पॉजिटिव, नीचे वाले ब्लॉक पे हो गया नेगेटिव, बट ओवरऑल वर्क डन इज स्टिल 0। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, ठीक है, प्लस
नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, मीन फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस पे एक्ट करेगा, तो हमारा सिस्टम किसका होगा, ऑन द टू सरफेसेस इज ऑलवेज जीरो। यानी दो सरफेस को मिला के स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, बट इंडिविजुअली वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कभी कभी कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा कितना इस जगह पर, तो कई लोग क्या कर देते हैं, अच्छा स्टैटिक है तो म्यू एम जी लगा देते हैं। नहीं देखो बेटा, म्यू एम जी आपको नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, आपको दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ चलाना है। मैं शॉर्टेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लियर गिवन है, सपोज नीचे वाले का मास m, इस पे फोर्स F लगा और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आप पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आएगा, इतना। अब आप ऊपर वाले का एम्पिटी बना लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले पे एक इसका फोर्स लग रहा है mg ग्रेविटी, एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल और एक फ्रिक्शन लग रहा है आगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऊपर नीचे से तो हमको मतलब है नहीं, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू Na। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कितना हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी mf अपॉन m प्लस m, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपसे पूछेगा कि किस वैल्यू तक दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, किस वैल्यू तक दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा जब तक ये रिक्वायर्ड फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा किससे कम रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू एम जी से। तो जब तक मेरा F, ये कंडीशन मेरी फॉलो होगी, ठीक है, m से m कट गया, तो जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स म्यू m प्लस एम जी से कम है, तब तक दोनों ब्लॉक्स मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और तब तक फ्रिक्शन कितना लगेगा, mf अपॉन m प्लस m। आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम फोर्स F मैक्सिमम टिल बोथ विल मूव टुगेदर विल बी दिस वन म्यू m प्लस एम जी, ठीक है। तो जस्ट क्विक रिवीजन हो गया आपका फ्रिक्शन वाले चैप्टर का, कि हमने कहा चलो क्वेश्चन चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं बेटा, आपने किसी चीज को वर्क एनर्जी में पढ़ा या फ्रिक्शन में पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। ज्यादा जरूरी है कि आपने कहीं पढ़ा, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे जो पहले बताया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन on individual surface can be positive, can be negative, can be zero, but as a whole work done by friction on both the surface is always zero, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से हम दो केसेस लेते हैं, सिंगल ब्लॉक जो कि ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड इज फिक्स्ड, आपने F फोर्स लगाया, आपका फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, आपका ब्लॉक आगे को बढ़ गया, बट इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज माइनस F के डेल्टा S एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज जीरो, ठीक है। ओवरऑल वर्क डन इज नेगेटिव। यहाँ देखते हैं इस बार इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सेकेंड वाला ज्यादा आगे गया, वन वाला आगे तो गया बट इसके रिस्पेक्ट में कम आगे गया। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर गया तो ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर गया। तो रिलेटिवली अगर हम आपसे पूछें 2 के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, पीछे, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, आगे, 2 के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, पीछे। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे, नीचे वाले ब्लॉक की सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे। अब ध्यान रखिएगा x2 x1 से बड़ा है, तो क्या हुआ, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 1, फ्रिक्शन भी आगे, ये गया भी आगे, पॉजिटिव प्लस F के x1। नाउ सेकंड वाले पे फ्रिक्शन पीछे गया आगे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव माइनस F के x2। टोटल वर्क डन F के माइनस x2 प्लस x1, और क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो फिर से आपका नेट वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव। सो हमारा रिजल्ट क्या निकला, इंडिविजुअल सरफेस पे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। इंडिविजुअल सरफेस पे आपने देखा इट कैन बी अगेन पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और ग्राउंड वाला केस देखा था ये वाला, यहाँ पे 0 भी था, बट नेट वर्क डन on both the surface is always negative, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिविजुअल सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी, बट ओवरऑल 0। काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन
एक सरफेस पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, बट ओवरऑल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक और केस देखेंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे इस ब्लॉक को हमने यहां से फोर्स लगा के खींचा, और क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। हमने एफईटी बनाया, नॉर्मल एन mg, एन बराबर mg, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कितना हो गया, म्यू mg। तो वर्क डन इज, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x आगे को हुआ, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया माइनस म्यू mg x। अब मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता, तब क्या इश्यू होता देखिए। अब यहाँ से सरकता हुआ आ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल इसका जो बेस है वो अभी भी x है, और ये मान लीजिए टोटल कितना है, दिस टोटल इज l। ठीक है, तो फिर से एफईटी बनाया, mg n, mg के दो कंपोनेंट कर लिए, mg sin थीटा, mg cos थीटा, पीछे को क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, म्यू mg cos थीटा। अब आप देखो, जब आप एक छोटे से सेगमेंट पर आ रहे हो, इसको आप dl मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर को, dl नीचे को, एंगल कितना हो गया 180। और ध्यान रखना ये एंगल जो थीटा है, ये स्लोप का एंगल है थीटा, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। तो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाता, फोर्स dl, और ये एंगल कितना है 180, तो ये हो गया cos 180 माइनस म्यू mg cos थीटा dl। सारे dl को जोड़ा, l मिल गया। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं यहाँ से, तो ये l, ये थीटा और ये x, तो आप देखोगे l cos थीटा विल बी इक्वल टू x, यानी माइनस म्यू mg x। अब क्या करते हैं, केस 3 ले लेते हैं, जहां पर कि हम कर्व्ड पाथ करते रहे। अब देखिए कर्व्ड पाथ से क्या हुआ, हम पूरे रास्ते में आ ही नहीं रहे। हमने एक हिस्सा देखा, ये छोटा सा dl वाला, यहाँ का एंगल कुछ थीटा था, फिर से एफईटी बनाया, वही एफईटी बन गया mg sin थीटा, mg cos थीटा, और आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, वो आ गई म्यू mg cos थीटा। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये जो आपका थीटा होगा, देखो यहाँ का जो थीटा है ये हर वक्त चेंज होता रहेगा। यानी यहाँ पे कुछ एंगल था थीटा 1, यहाँ पे कुछ एंगल हो गया थीटा 2, यहाँ पर कुछ और एंगल हो गया थीटा 3। इस तरह से क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इशू आएगा कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हम करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन डॉट dl, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन dl cos 180। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा है म्यू mg cos थीटा dl cos 180 हो गया माइनस इंटीग्रल। अब यहां से माइनस म्यू mg बाहर आ जाएगा, लेकिन cos थीटा इस बार बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो cos थीटा है वो वेरिएबल है। यहां से हमारा cos थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था। तो यहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे कि आप ऐसे देखो बेटा, ये आपका सेगमेंट है, ठीक है, आप ऐसे देखो, ये सारे dl cos थीटा, जैसे यहां से आपने देखा ये dl, ठीक है ना, यहां से, तो ये क्या बन गया dx, यहां से आ गया है, ये क्या बन गया अगला dx, ये आप आगे आए, ये क्या बन गया अगला dx, यहां से आगे आए, ये क्या बन गया अगला dx। तो यहां से अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो आप देखो इस चीज को, ये dx, फिर ये dx, फिर ये dx, फिर ये dx, यानी यहां से लेके यहां तक सारा परछाई ले लो, तो ये dx 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 जुड़ के टोटल क्या बन गया, फिर से x बन गया। यानी किसी भी जगह के हमारे पास जो dl cos थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं dx। तो ये हमारा बन जाता है माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा x आ जाता है, तो ये बन जाता है फिर से माइनस म्यू mg x। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हमको क्या समझ में आ गई, इसको हमको याद रख लेना है, बार बार ये सवाल नहीं करना है। जब भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, हालांकि ध्यान रखना ग्रेविटी के केस में क्या था, वर्क डन हमेशा वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता था, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन का वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो बेस वाला पार्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसमें लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना होगा, इसमें एक क्रक्स है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये
स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, तो चाहे आपका जो ब्लॉक है वो स्लोली आए, चाहे ये तेजी से गिरता हुआ है, दोनों ही कंडीशन में जब आप इसका एफईडी बनाओगे तो ये n होगा और ये mg और ये होगा mg cos theta and this will be mg sin theta. मतलब it doesn't matter whether this block is sliding slowly or this block is sliding with some speed. ठीक है, तो n आपका दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस यू विल गेट n इक्वल्स टू mg cos theta और आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नो डाउट माइनस म्यू mg x. बट अगर ये कर्व प्लेन है तो देखो क्या इशू हो जाएगा, कर्व प्लेन होने पर जब ये नीचे को आ रहा होगा अगर धीरे धीरे यानी स्लोली, तब तो कोई इशू नहीं, आप n और जिस भी जगह पे mg बना रहे हो वहां से ये mg cos थीटा लिखा जाएगा और क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो 0 है, तो आपका घूम जरूर रहा है लेकिन किसी तरह का कोई सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो n माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू m0. ठीक है ना, दिस इज किसी तरह के सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है और आपका n बराबर कितना आ जाएगा mg cos थीटा और फिर से आपका वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg x, यानी जो हमने आपको बताया था. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन अगर ये स्लोली ना आकर, अब आप ये समझिए कि ये किसी स्पीड से आ रहा होता, तो अगर ये किसी स्पीड से आ रहा होता तो उस वक्त ये एक सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा हो जाता. भाई कर्व है लेकिन हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई जो भी कर्व है वो कोई ना कोई सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे आपका AC 0 ना होकर कितना हो जाता v²/r ये, और तब आपका n mg cos थीटा प्लस समथिंग होता यानी कि mv²/r और तब आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg x नहीं होता. उस केस में आपका जो वर्क डन होता वो माइनस म्यू mg केस से थोड़ा सा ज्यादा था. क्यों? क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू हमारी बढ़ गई है. हालांकि हम मान रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बोला जाता है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, लेकिन देखिए आते हैं नहीं आते हैं कि कोई गारंटी नहीं होती है बेटा. कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है भाई एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया है कि नहीं है, आपको फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना आता है कि नहीं आता है. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगर नीट में आ भी जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस था. तो आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, तो फिर आपका किसी भी तरह का कर्व ना होने की वजह से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, तो n हमेशा mg cos थीटा रहेगा. लेकिन कर्व वाले हिस्से में दो चीजें हो सकती हैं, धीरे धीरे आ सकता है और तेजी से आ सकता है. If it is coming slowly, then no issue, then n will be equal to mg cos theta and our answer will be same as we calculated in the last segment, that will be minus mu mg x. But if it is coming with some increasing speed or decreasing speed, yeah, if it is coming in motion, in that case work done by friction will not be equal to minus mu mg x, because in that case normal will not remain mg cos theta, it will be slightly greater than mg cos theta. I hope this concept is clear to you, so please note it down. One more question we will see. A small block of mass m is moved over a rough curved path and block is moved slowly. We have to find out the work done by the applied force from A to B, and it is given coefficient of friction is mu. The major points are and the dimension, vertical height is h, horizontal जो distance है that is given as L. Main point is block is moved slowly, that means at A and B the speed was almost 0, so change in kinetic energy is 0. Three forces are involved: work done by force, work done by friction, plus work done by gravity. Actually there is one more force, but I'm not showing that. That is work done by normal. But since at each point normal and ds will be perpendicular, but ideally we should write, I agree, okay, it is 0, that doesn't matter, we should write it as 0. This is delta k. ठीक है,
So now this we don't know. Work done by friction, as we discussed, that depends upon horizontal base length, and here it is clearly mentioned the movement is very slowly, so it doesn't matter whether the path is curved or straight, so that will be minus mu mgl. Work done by gravity depends only on vertical height, ठीक है, gravity is downward, movement is up, so minus mgh plus 0, normal का work done is 0 is equal to delta k itself is 0. So simply in two lines we got work done by the applied force equals to mu mgl plus mgh, ठीक है. ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है बेटा जहाँ पे क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, और सॉल्यूशन तो क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया, वरना सॉल्यूशन वाज वन लाइनर, बस आपको वर्क डन बाय फोर्स इसको लिख के सीधे आप ऑप्शन देखते, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा ये बताने में. तो आपको क्या याद रखना है, ग्रेविटी का वर्क डन इन ऑल द केसेस इज mgh, प्लस और माइनस एडजस्ट कर लीजिए, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है. फ्रिक्शन का वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, चाहे वो स्ट्रेट चले चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे चले, इंक्लाइन प्लेन अगर स्मूथ है तो हमेशा म्यू mgx, और अगर कर्व पे स्लोली है तो म्यू mgx, और अगर मूवमेंट के साथ आ रहा है उस केस में निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है. तो आई होप चीजें आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होता जा रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए. नाउ सेम वे में यहां पर हम देख सकते हैं, we have a inclined plane with a junction at this point, and a block starts sliding from A and it reaches the point B. The dimensions of the block are given, h1, h2, this portion is x1, this portion is x2. We have been asked find the speed at point B. So again same thing, how many forces are acting, gravity, normal and friction. So work done by gravity plus friction plus normal equals to delta k. Work done by gravity depends upon vertical distance, so mg h1 plus h2. Work done by friction depends on this base length, so mu mg x1 plus x2, minus sign because work done by kinetic friction is negative. Work done by normal at every point, angle between n and ds is 0, so plus 0 equals to half m vp square minus 0 square. Now simply we have just calculated, we have solved the equation. mg कॉमन लेके यहाँ से कट हो गया and vp came out to be 2g h1 plus h2 minus sigma, ठीक है ना. इसी में अगर आपको नंबर्स मिल जाते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो आप उसको बोलेंगे कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया. बट मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में न्यूमेरिकली है. मैं वैल्यूज इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज डालने के लिए मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर, और ऊट पटांग वैल्यू डाल के फिर यहाँ पे वो आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. तो बेटर है आप कॉन्सेप्ट समझिए. हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स में ग्रेविटी के वर्क डन पे हम वर्टिकल डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, और फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज कर रहे हैं. बस फ्रिक्शन वाले में हमको क्या ध्यान रखना है, अगर कर्व्ड पाथ पे कभी सवाल पूछ ले, वो भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो कर्व्ड पाथ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा माइनस म्यू mgx नहीं होगा. कर्व्ड पाथ पे माइनस म्यू mgx तभी लेंगे जब मेरा ब्लॉक धीरे 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 नीचे उतर रहा होगा, ठीक है ना. सो इसके बाद ये मेरे ख्याल से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपको काफी हद तक फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया. अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट विल बी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग फोर्स. यहाँ भी काम आएगा. SHM पूरा चैप्टर ही आपका एक तरीके से आधा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पे काम करेगा. थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं. स्प्रिंग एक मीन पोजीशन होगी, अगर इससे आप खींचने की कोशिश करते हैं, इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, तो स्प्रिंग इसको अपोज करेगा. तो अगर आपने राइट को खींचने की कोशिश करी तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसका मैग्नीट्यूड इलोंगेशन पे डिपेंड करेगा. दिस इज हुक्स लॉ. सो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू k डेल्टा x, वेयर k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इसको हम वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, F स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस k डेल्टा x. इसी तरह से अगर आपने इसको कॉम्प्रेस किया होता, यानी लेफ्ट को दबाया होता, तो स्प्रिंग फोर्स राइट को लगता. तो ये माइनस साइन आपको ये बता रहा होता है कि अगर आप स्प्रिंग को राइट, यहाँ के हिसाब से राइट, यानी कि अगर इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स उसको अपोज करेगा, और अगर आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो भी उसको अपोज करेगा. यानी मीन पोजीशन से राइट ले जाएंगे तो स्प्रिंग वापस यहीं लाना चाहेगा, और मीन पोजीशन से लेफ्ट लाएंगे तो भी स्प्रिंग फोर्स उसको यहीं लाना चाहेगा. तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है दैट विल ट्राई टू रिस्टोर द मीन पोजीशन, और इस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे बेटा रिस्टोरिंग फोर्सेस. तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग न्यूटन्स लॉ में जब स्प्रिंग वगैरह हल्का फुल्का पढ़ते हैं तो इतना हम जानते हैं. दैट मीन्स
यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाएंगे स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता जाएगा, यानी स्प्रिंग फोर्स को जब आप भी यूज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स विल बी अंडर वेरिएबल फोर्स, जबकि हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स कम से कम ग्राउंड के आसपास, अर्थ के आसपास में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आ रहा था, दैट वाज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे थे। ठीक है, इतना हम नोट कर लेंगे पहले। तो अब ये देखिए, मान लीजिए स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये ऑलरेडी खींचा हुआ है। मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक काम कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग को पढ़ाया जाता है कोचिंग्स में मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन के चक्कर में मत पढ़ना बच्चे, मीन पोजीशन के चक्कर में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। हम बाद में इसको स्पेशल केस बना के एक्स इनिशियल को 0 पुट कर दूंगा मैं, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, मीन केस वाला। लेकिन जब आप जनरल केस करके शुरू से ही पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज का आधा अधूरा या गलत नहीं पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी खींचा हुआ था कितना, एक्स इनिशियल से, और इसको हम खींच के एक्स इनिशियल से कहां तक ले जा रहे हैं, एक्स फाइनल तक। ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन से या मीन पोजीशन से एक्स इनिशियल खींचा था और अब ये फाइनली इतना खींचा। हमसे पूछ रहा भैया ए से बी जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि ऐसा है भैया, मान लो किसी भी टाइम पर ये खींच गया था कितना, एक्स, तो इस वक्त जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा कितना, के एक्स। ठीक है, कहां को, लेफ्ट को। और यहां से अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा और खींचते हैं कितना, dx, तो आपका जो छोटा सा वर्क डन होगा स्प्रिंग का वो आ जाएगा के एक्स dx cos 180। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अंदर को लग रहा है और आप कहां को खींच रहे हैं, बाहर को, यानी कि माइनस के एक्स dx। और ऐसे सारे वर्क को ऐड करते चलेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाता है माइनस हाफ एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर या पता नहीं जो भी पढ़ते हो मत पढ़ा करो, आप इसको ऐसे ही लिखा करो, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होना है। अब आप देखो यहां से हमने क्या क्या सीखा। अगर यहां पर सबसे पहले समझो एक्स फाइनल क्या है, एक्स फाइनल इज फाइनल elongation और compression, और x इनिशियल क्या है, इनिशियल elongation और compression। तो अगर x फाइनल इज ग्रेटर देन x इनिशियल, यानी कि या तो आपका स्प्रिंग इज गेटिंग elongated और your spring is getting compressed, यानी if spring is getting elongated or compressed, तो in that case आपका जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है that will be minus half k x final square minus x initial square। ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी एंड टोटल वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव अगर आपके स्प्रिंग का इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होता है। बट अगर आपका स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ है और आप उसको छोड़ रहे हो, ये यानी कि एक इलोंगेटेड स्प्रिंग इज गेटिंग लेस इलोंगेटेड, दैट मीन्स एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल। उस केस में वर्क डन स्प्रिंग विल बी माइनस हाफ के दिस वन, और क्योंकि एक्स फाइनल कम है तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव आके वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स अब आप इसको ऐसे समझो देखकर, सपोज ये आप स्प्रिंग को खींचे, आप सोचो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, आपने स्प्रिंग को खींचा, तो जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लग रहा है और आप खींच पा रहे हो बाहर को, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव। अब ये स्प्रिंग है, आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको धक्का दे रहे हो, जब हम इसको धक्का दे रहे हैं तो फिर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर को, यानी कि स्प्रिंग फोर्स बाहर को, डिस्प्लेसमेंट अंदर को, फिर वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव। यानी स्प्रिंग कम खींचे से ज्यादा खींचा या कम दबे से ज्यादा दबे की ओर जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अब देखो ये मैंने स्प्रिंग खींच दिया और अब मैं इसको छोड़ रहा हूं,
तो जब मैंने स्प्रिंग को खींचा हुआ है तो स्प्रिंग का फोर्स यहाँ लग रहा है, और अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लॉक भी यहीं जाएगा, यानी कि लेस इलोंगेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर स्प्रिंग खींच रहा है यानी कि लेस इलोंगेटेड स्टेट से मोर इलोंगेटेड स्टेट, या लेस कॉम्प्रेस स्टेट से मोर कॉम्प्रेस स्टेट की ओर जा रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर वो मोर कॉम्प्रेस स्टेट से लेस कॉम्प्रेस स्टेट की ओर आ रहा है तो इन दैट केस वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप हमेशा नोट रखे रहेंगे। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप मीन पोजीशन से देखोगे तो मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जीरो इलोंगेशन या जीरो कॉम्प्रेशन। तो मीन पोजीशन से हमेशा आपको एक ही कंडीशन मिलेगी, अगर आप मीन पोजीशन पर होंगे तो या तो आप इलोंगेशन की तरफ जाओगे या आप कॉम्प्रेशन की तरफ जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और या फिर आप इस फॉर्मूले से देख लो, आप एक्स इनिशियल को 0 पुट कर दोगे तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, -12 के एक्स फाइनल स्क्वायर। क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू करते हैं तो हम एक्स फाइनल को एक्स फाइनल ना लिखकर क्या लिख लेते हैं, -12 के एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देख के कई बार बच्चों के दिमाग में ये भर जाता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी नहीं बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन, आप बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन विल बी नेगेटिव, लेकिन अगर आप बॉल को छोड़ देंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इन द सेम वे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लास्ट सेगमेंट वर्क डन बाय सूडो फोर्स, और उसी लेक्चर में अब हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कई सारी प्रॉब्लम्स करके देखेंगे, ताकि अब तक जितना हमने पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट हम एक साथ यूज करके एकदम उसको दिमाग में बैठा सके। ठीक है, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके काफी डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।